भाई सर को बोलिएगा कि स्टार्ट। Good afternoon to all of you. So, welcome to the CBSE competitive school, and we are here to organize a debate competition between students of class 10. And the debate competition having a topic like reproduction and genetics. We have a student, so they will tell about some information like his name, her name, and okay. So table number 1. What is your name? My name is Komal Kumar. Komal Kumar. Table number 2. My name is Ijma Ansari. My name is Anil Bhajar. My name is Prashant Kumar. Okay. My name is Prashant Pal. My name is Pradeep Pal. My name is Mahesh. My Hello. Okay. So all students have given the information of table number and their names also. So we are going to ask the first chapter from the student, table number 1, reproduction. So first question goes to the table number 1. Is reproduction can be a part of life process or not? Not Why? What is the reason? because without reproduction, protein can survive. Okay. Tell me the answer in briefly tell me. Reproduction is a process in which fusion of male and female gamete, but without fertilization, protein can survive. Sclerosation. In the life process, we discuss about sclerosation, or transportation, etc. That through protein can survive. So basically you are saying that the life process consists of nutrition, digestion, Yes, yes. excretion, but reproduction is not a part of life process, right? Because without reproduction we can't survive. That's why the life process is not a part of Reproduction. reproduction is not a part of Life process. life process. Exactly. So table number 2. I want to ask what is the exact definition as per NCERT of reproduction? Can you tell me what is the as per NCERT? Yes. What NCERT tells about reproduction? Reproduction is the process in which the organisms have the ability to produce their progeny. That is called the reproduction. Okay. Reproduction is a process where two organisms interbreed and produce fertile offspring, right? So, why reproduction is important? Why? In this planet, Because it is the maintain the character of a species and also maintain the continuity of the species. exactly. Because it continues the specialty of species. मतलब species को क्या करता है? Continue करता है. Exactly. So, table number 3. So, we will ask about the reproduction more in detail. Why reproduction considered? Which form of reproduction considered as more variation? Yes. Sir, sexual reproduction is known as the most varying part of reproduction, as it involves two parents and they have different characters, and their characters get fused to form a new to give life to a new organism. So there is a large amount of variation. Large amount of variation, right? So basically, sexual reproduction is, responsible for the variation, right? Sexual reproduction is important for the variation, exactly. So why? I'm actually why. Which terminology you will use in variation? So do you know what crossing over like? Crossing over? Yes, sir. So what is crossing over? Crossing over is a process in which we discuss about the outcomes of the fusion of gametes. Like there are two Fusion of gametes is called fertilization. But Yes, I'm sir. asking about crossing over. fertilization. The process is the process in which the male gamete and female gamete fuse with each other and form zygote. What is crossing over? Crossing over is the process by which we can get the outcomes to know that whether the organism is going to be male or female. Anybody else? What is crossing over? Yes, Prashant. Crossing over is a process in which a new progeny form with changing the DNA sequence, which is varied from the parent progeny. Exchange of DNA.
exchange of DNA between two species, है ना? उनकी species में DNA का exchange, right? Okay, कोई बात नहीं. Moving to the table number 4. Okay, so next topic I will ask you. Do organisms create exact copy of themselves? I want to ask. This is a line. Line has taken from the NCERT. Do organisms create exact copy of themselves? Is it right? No, exact copy. Why? Why? This is a question, right? This question is asked from the NCERT. Yes. Do organisms create exact copy of themselves? Do you, next, मतलब बोलता ही होता है. Do you have similarity with your parents? Do you have similarity with your parents? Yes or no? Yes, genes. Yes. Similarity. Or on what kind of similarity? DNA. DNA. Yes. Basically, you are saying your DNA and your father DNA is same. Yeah. So from how basis you are saying? Which basis you are saying? Is it right? Tell me. Your DNA, your father DNA is same. Basically, full DNA comes from your father. Half of the DNA comes from your father, right? So he is saying, okay, sorry. Over and out. Tell me. आंसर नहीं आता तो बोल दो, नहीं आता पास करते हैं उसको फिर. Anybody else? Yes, Kali. What is the answer? I am asking, do organisms create exact copy of themselves? Do you have similarity with your parents? No. Due to the DNA replication, different times the DNA. Actually, he is saying yes. The answer is yes. But why? I am asking why. I am not talking about variation, right? Just simple. DNA replication. Yes, ही है. DNA replication is a सिर्फ एक वर्ड को बताना था आपको और कुछ नहीं था इसमें. किसका टेबल नंबर आएगा? टेबल नंबर 5. टेबल नंबर 5 में हम डिस्कस करना चाहते हैं बेटा कि डीएनए रेप्लिकेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? हाउ कैन यू डिफाइन डीएनए रेप्लिकेशन? DNA replication means two DNA means one of the both the DNA of the parent progeny are fused together to form a single one in which there is a some error in the DNA formation, due to which a parent progeny is actually opposite some error in the parent progeny. देखिए, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप हिंदी में बता सकते हैं, मगर आप गलत बताओगे. हाँ, हिंदी में बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम. DNA replication व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? कोई नहीं है, देखो. formation It's just a class. So enjoy your class. This is not a nobody is present here. See, only your classmates and friends are present here, and your class teachers as usual. Yes. DNA replication is the means we can say formation of protein through nucleus. It is also found in the DNA replication. DNA replication is the process where the DNA copies itself in a new DNA and makes new DNA, right? But new DNA do not have exact copies. There are some errors. That errors leads to the variation, right? Okay. आपको लग रहा है थोड़ा सा आपने पढ़ा नहीं है इसको. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम. क्रॉसिंग ओवर को हमने डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट कौन है? टेबल नंबर 6. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन? DNA copy is important in the reproduction because it is the maintain the quantity of the speech and characteristic of the species, and it is quantity of the speech and characteristic of the species, and it is a help to the helping the evolution. Yes, exactly right. So reproduction में वेरिएशन आता है with the help of sexual reproduction.
Give me any example of variation. If I have 12 in your class, yes, Bacteria. yes, bacteria. So can you tell me in brief how bacteria will make itself a variant, right, to save itself, okay, from the hot water which is releasing from the factory. Yes. Bacteria that is living in water and they can tolerate the temperature between 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. That is upstream flow. It is थोड़ा called इसको पास as करो niche. माइक को, और पास करो, बिल्कुल पास से बोलो, आवाज आए बढ़िया. Yes. Bacteria that live in water can tolerate the temperature between 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. This is their functioning flow. It is called niche. And after industrialization, industry directly pour hot water and untreated water directly into the river. And by this, bacteria cannot tolerate the higher temperature of the water. So for their survival, they make radiation in their body. By this radiation, they can tolerate the temperature above 30 degrees Celsius. Thus, we can say that radiation play an important role for science. Exactly, very good. Yes. She uses the terminology of niche. What is niche? Table number 8. What is niche? I have told you niche. Yes. What is the concept of niche? How many of them you know the concept of niche? Niche. Yes. Yes, Prashant, what is niche? Same ability of bacteria living together. Yes. A niche is an organism when just she said that about the bacteria, and when the bacteria produces its new generation, then it has some variation and it has some different kinds of abilities, and that organism is under niche. Is that right? niche. niche में मैंने ये बताया था कि एक ऑर्गेनिज्म जो पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है, और फंक्शनली एक्टिव है, यही बताया था ना. ये सब क्या बता रहे हैं? आई डोंट नो. नेक्स्ट आ जाते हैं टेबल नंबर 1 पे. नाउ basically we know that reproduction can be divided into parts, asexual and sexual. Asexual reproduction को आप कैसे define करोगे? How can you define? Asexual means no responsible for male and female and no formation of zygote, in which gamete will be not formation, zygote भी नहीं बनेगा. In identical copy of parents and no variation among ordinary. Why variation? क्यों variation नहीं आ रही है? Because identical copy of parent. Why? तो parent का ट्रांसफर होता है अपने parent. Variation क्यों नहीं आ रहा है? That is the simple question. Yes. Any other? Why variation is not coming? Yes. In the mouth. Not a fusion of male gamete. Exactly. Not a fusion of gametes. तो क्यों आएगा variation? Single parent is involved here, है ना? Okay. Okay. So what are the examples in asexual reproduction you should take? Fusion. Examples of organism. Asexual. हाँ. Yeast. Yeast. Amoeba. हैं? Amoeba. Asexual. अमीबा. क्या बोल रहे हो? Yeast. Yeast और Yeast. Plasmodium. प्लाज्मोडियम और Aspergillus. स्पाइरोगायरा. Planaria. How many organisms are associated with the asexual reproduction? Yes, Kali. Leishmania, amoeba, yeast, और the
Pyrophyllum lips. Hmm? Pyrophyllum lips. और Protozoa. Protozoa. Plasmodium. Okay, these are the organism. Yes, कोई बचा? नहीं बचा. Okay. Table number 2. Table number 2. Going to the question under the asexual reproduction. What do you mean by fission? Fission, it is a type of asexual type of reproduction in which the parent organ divided into or more daughter cell, that is called fission. It is a two type, binary fission and multiple fission. In binary fission, the daughter cell कैसे आप ये एक्सप्लेन करोगे कि डायग्राम में आपको दिया जाए तो कैसे आप बताते हुए चलोगे फिशन को? बाइनरी फिशन को डिस्कस करो. we take an example of amoeba. Amoeba has we take an example of amoeba and the DNA, the nucleus is divided into two. That process the karyokinesis and also the cytokinesis also process occur, and after this the amoeba is divided into two parts, form a two daughter cell. Only karyokinesis. Karyokinesis as well as cytokinesis. सही बात है. और फिशन कितने तरीके का होता है? बाइनरी फिशन तो हो गया. Multiple fission. Multiple fission. What is the difference between binary fission and multiple fission? In the binary fission, the parent organ is divided into two daughter cells. But in the multiple fission, parent is divided into two or more The daughter cells. second difference स्पोर्स का भी तो है. मल्टीपल फिशन प्लाज्मोडियम के अंदर हो रहा है ना, तो वहाँ स्पोर्स है ना, यहाँ पे स्पोर तो नहीं है, Yes. है कि नहीं? Yes. मल्टीपल फिशन का एग्जांपल Plasmodium. प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम क्या होता है? Example of multiple fission. एग्जांपल ऑफ Multiple fission. मैंने पूछा, आपने बताया कि प्लाज्मोडियम जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर मल्टीपल फिशन हो रहा है. वो है क्या? प्लाज्मोडियम क्या है? Unicellular. हैं? Unicellular. ठीक है, मान लिया. दिखता कैसा है? क्या आपको कोई डिसीज होती है प्लाज्मोडियम से? कोई डिसीज होती होगी प्लाज्मोडियम से? डू यू नो दिस डिसीज? उस डिसीज का नाम पता है आपको? Scala cell. काला आजार. वो तो लिशमानिया से होता है. हाँ. Most of it. Do you know all of you? What is the name of the disease? Very simple. Okay. Now we are going to the leishmania. What kind of asexual reproduction present in leishmania? Table number 3. First of all, you should tell me about leishmania. Is it unicellular organism or multicellular organism? All of you guys. Is it unicellular or multicellular? Leishmania. Unicellular. What disease that cause? Leishmania causes Kala Azar. Kala Azar. Okay, right. So what kind of reproduction you have observed in leishmania? In Leishmania, firstly there is a leaf-like structure present, and it divides. It began to divide, and then after the process of karyokinesis takes place. In the karyokinesis, there is a formation of two nucleus for the two different organisms. Then after the process of cytokinesis takes place, during which the new birth organisms which are made from the parents are get divided, and there is a formation of two leishmania. Just tell me, in leishmania 2022 या सॉरी 20 या 21 का क्वेश्चन है कि पहले इसमें न्यूक्लियस फ्यूज होगा या साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा. Exactly. Okay. Moving to the next question, table number 4. Yes. आप मुझे कुछ बताएं. मल्टीपल फिशन तो हो गया, मगर आप मुझे बताएं मल्टीपल फिशन अनफेवरेबल कंडीशन में क्यों होता है? बाइनरी फिशन फेवरेबल कंडीशन में होता है, मल्टीपल फिशन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है. इसका मतलब क्या हुआ?
Pass the question. How many years you know? Why unfavorable condition? By condition favorable में हुआ है? Yes, Prashant. Because in the unfavorable condition, foam cyst around it. Yes. Under the cyst there is multiple types of nuclear division, that is karyokinesis, and there is also cytokinesis occur. And when the ovum is found favorable condition, the cyst get destroyed and they form a multiple ovules. ठीक है, वेरी गुड। 5 नंबर पे टेबल पे आते हैं और बडिंग को पूछते हैं। कैसे बडिंग को बताओगे आप? Budding is the process of occurring a bud on the surface of the body, which is grown further into new individual through the process of first it occurs in the karyokinesis, and after that there is also cytokinesis. And when the body become mature, then it get detached with the parent progeny and become new one. सही है, बढ़िया। इसमें जो हाइड्रा में जो बड बन रहा है वो एक्सोजीनस है या एंडोजीनस? हाँ, तो और किससे पूछे? एक्सोजीनस ना? सही बात है ना, एक्सोजीनस बाहर की तरफ बड बन रहा है, सही है। क्या इंटरनल बड भी एंडोजीनस भी बड बनता है क्या किसी में? उसी के जस्ट बदल नीचे लिखा है एंडोजीनस बड भी बनता है, हो सकता है। भैया मैं तो सब वही पढ़ा रहा हूँ, क्या करूँगा, सामने खुला नहीं। एंडोजीनस आपको पता है ना, स्पंज में देखने को मिलता है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैगमेंटेशन? टेबल नंबर 6। यस, फ्रैगमेंटेशन। Fermentation is a type of the fermentation is a mode of the asexual production. Yes. In additional production, fungus can split into the different three small fragments, and Yes. each fragment is formed the It is a whole organism, right? So, which organism? Spirogyra, exactly. Spirogyra. अच्छा, एक माइटोस, इसमें क्या हो रहा है कि एक फ्रैगमेंट टूट रहा है, वो फ्रैगमेंट से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। कौन सा डिवीजन कराना चाहोगे, माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मियोसिस? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जर्म से चाहिए उसके लिए। अगला भैया टॉपिक पे आते हैं, रीजनरेशन पे। आप बताएं मुझे रीजनरेशन क्या होता है? Regeneration is the ability of an organism to make the lost part of the body. It is highly seen in Canidia and earthworm and hydra. ओके, रीजनरेशन। And it is a type of asexual reproduction. ठीक है। Is it present in cell, our cell? हमारे में रीजनरेशन होता है क्या? कहीं हमारी बॉडी में रीजनरेशन देखने को मिलता है? तो आप तो कह रहे हो। और उसके अलावा स्किन, स्किन में भी जो है लीवर में भी रीजनरेशन है। अगर आपका लीवर थोड़ा सा खराब हो जाए तो नया लीवर वहां से बन जाएगा, है ना? So I will ask you, what is the difference between fragmentation and regeneration? The main difference between fragmentation and regeneration are following. Fragmentation is rooted in vertebrates, whereas regeneration is rooted in both invertebrates and vertebrates. And fragmentation may take place in and seen in plants like Spirogyra pelti, and whereas regeneration can seen in Sagittaria and mammals also. ओके, राइट, डिटेल में बताया, बहुत अच्छा बताया। ये टेबल नंबर 8, टेबल नंबर 8, what is the vegetative structure present in plant? Do you know what is vegetative parts? There is a vegetative parts in plant. What are those parts? Leaf, stem and root. Vegetative. What is the reproductive part? Plant has two parts, vegetative and reproductive. बड़ा लोगों का क्वेश्चन है। वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव पार्ट भी तो होता होगा, जैसे आपके अंदर सोमैटिक सेल, जर्म सेल होती है, वैसे उनमें भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है।
फ्लावर वेरी सिंपल, मतलब बेइज्जती यहाँ कराना बहुत बढ़िया है। अब क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम दो तरीके से, मतलब उससे नया प्लांट बना सकते हैं। एक तो एक नेचुरली कर सकते हैं और दूसरा आर्टिफिशियली कर सकते हैं। हो गया अब तक ना। टेबल नंबर 1 पे आते हैं और टेबल नंबर 1 पे आते ही हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पहला ही टॉपिक है कटिंग का। तो व्हाट डू मीन बाय कटिंग? क्या कटिंग का मतलब है? क्या कटिंग से आप नया प्लांट बना सकते हैं बगीचे में बैठ के? अगर बना सकते हैं तो कैसे? Just we say example of sugar cane. शुगर केन, हाँ ठीक है बताओ। Sugar cane has vegetative portion. नहीं, firstly we take vegetative portion of sugar cane. Means मतलब जो निकल रहा है उसका ठीक है, vertically and it take it and is cutted ओके and rooted in soil. Deformation in new plant. New What kind of division you find in this cutting? Is it mitosis or meiosis? mitosis. Mitosis. Okay. शुगर केन, इसके अलावा और भी कोई एग्जांपल्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं? Grapes. ग्रेप्स दिए, राइट। What do you mean by layering? It's a type of artificial vegetative propagation. It is occur in two types, air layering and mounting layering. In air layering, Layer layering है, mounting layering. माउंटिंग लेयरिंग। माउंट पे जाना है, वहाँ लेयरिंग करनी है। माउंट और बाउंड Mount layering. स्पेलिंग M-O-U-N-T. mount layering. So layering can be divided into parts: air layering as well as mount layering. What is air layering? Air And what layering. is mount layering? In air layering, plant can't be bent, and the mounting layering, plant can bend. In mounting layering, a plant can bend in the soil and form a new plant. And in mounting layering, to cut some part of the plant and expose the tissue and to kept in, मतलब उसको कट सके और कुछ वहाँ पर वाटर से साथ न्यूट्रिएंट्स जुड़े रहे, तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो होगा लेकिन एक न्यू प्लांट वहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। पास से बोलो, आवाज नहीं आ रही। जब हम लोग एक प्लांट को वहाँ के कुछ पार्ट उसके काटेंगे तो वहाँ के जो टिश्यू है एक्सपोज हो जाएगा। ओके, तो वहाँ पर मतलब न्यूट्रिशन मीडियम वहाँ पर लेकर उसमें कैप कर देंगे तो उसमें प्लांट ग्रो हो जाएगा। देखिए माउंट लेयरिंग क्या होता है? माउंट लेयरिंग में क्या होता है कि ऐसे प्लांट जो बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं वो तो मुड़ जाते हैं, उनसे बड़ा इजी है। मगर जो एयर लेयरिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत थिक स्टेम होता है, तो वो मुड़ तो सकता नहीं, बेंड तो कर सकता नहीं, तो वहां पे करते हैं कट करते हैं, है ना। और ऊपर एक न्यूट्रिशन मीडियम का लगा के न्यूट्रिशन घड़ा रख देते हैं, ऊपर से एक 1 बाय 1 डिप बाय डिप नीचे गिरता है और उसमें क्या नया प्लांट बना लिया जाता है। सो कोई एग्जांपल है इसका? क्या लेयरिंग का कोई एग्जांपल है? एक माउंट लेयरिंग का एग्जांपल बताओ, एक एयर लेयरिंग का एग्जांपल बताओ। माउंट लेयरिंग का जैस्मिन और उसका हो जाएगा मैंगोज रोज। मैंगोज रोज, मैंगोज मैंगोज ये क्या बोलना? मैंगो ट्री। एनसीईआरटी पढ़ी थी? नहीं। ग्राफ्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफ्टिंग? पोमीग्रेनेट, ऑरेंज, यस, grafting. The grafting is a process of artificial vegetative propagation in which two different plants are cut, and the first part is known as seon and second part is known as stalk, and both are bind and tied properly, and the stalk which leads to the formation of root is placed in the soil, and the seon which leads to the formation of shoot is placed above, and thereafter they are joined together, and after putting in soil, giving them favorable condition, and like watering and providing minerals, they will grow into a new plant. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन, वेरी गुड। एग्जांपल? Sir, the main example of grafting is mango and orange, rose. रोज। ओके, अब आते हैं नेचुरल फिनोमेनन के ऊपर। ये तो हो गए सारे आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलता है कहीं? किसमें?
तो प्लांट्स में ही देखने को मिलेगा और क्या एनिमल में देखने को मिलेगा? So leaves, हाँ? लीफ में क्या? लीफ का नाम क्या है? What is the name of that particular leaf? Biofilm. But produced in the notch along with the leaf body of the biofilm and fall on the soil and produce new plants. ओके, बर्ड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम नॉच यानी कि जो नॉच होती है लीफ की, वहाँ पे बर्ड का फॉर्मेशन होता है और वो बर्ड डिटैच हो जाती है और वहाँ से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर फॉर्मेशन? spore formation is mainly done in sporangia. हाँ, In this stick-like structure, scope of the stick-like structure there is a tiny blow which is covered by a hard layer which prevent it to come in contact with moisture and grow. In this globe-like structure break down and it contain a spore which is responsible for the growth of another asparagus. ब्रेड के ऊपर फंगस का ग्रोथ होता है। मॉइस्ट जो जिस ब्रेड के ऊपर मॉइस्चर लगता है उसके ऊपर फंगस लगता है। फंगस के जो हाइफी होते हैं वो सीधे सीधे खड़े हो जाते हैं और हाइफी रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है रिप्रोडक्शन के लिए। इसमें रिप्रोडक्शन अरे मैं उसको बता रहा हूँ पूरा डिटेल में। हाइफी खड़े होंगे, उस पे लगेगा एक कवर टाइप स्पोरेंजिया और उसके अंदर क्या बनते हैं स्पोर, है ना? क्या होता है कि फेवरेबल कंडीशन आते ही ये स्पोर्स क्या हो जाएंगे, ब्रेकडाउन हो जाएगा और ईच स्पोर गिव राइज टू ये, ठीक है? तो जैसे तुम बता रहे हो कि जो हाइफी क्या होगा, तो हाइफी एक्चुअली में स्पोरेंजिया किसके ऊपर टिकेगा? किसके ऊपर? हाइफी माइसीलियम के ऊपर ही टिकेगा। सिग्निफिकेंस क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? The significance of the vegetative propagation is a quick method, easier and cheaper. And new variety of the breed can be produced in a vegetative propagation. And it is also practiced by the gardener to form the new plants. First of all, genetically similar variety can be produced from vegetative propagation. It is a quick method, बहुत quick है। Vegetative propagation में इतना टाइम नहीं लेता है, जबकि sexual reproduction बहुत टाइम लेता है। Easier and cheaper भी है और good variety of breed भी हम बना सकते हैं। कोई बहुत अच्छा प्लांट है, उसका हमने vegetative propagation कर लिया। चलो, अब हम देख रहे हैं आपको कौन बेस्ट दे रहा है। ये ऑब्जर्व कर रहे हैं बराबर। टिश्यू कल्चर, what do you mean by tissue culture? चलिए लास्ट टाइम पे चर्चा भी चल रही थी टिश्यू कल्चर। When natural condition is not comfortable for the growth of the plant, then tissue culture is a very useful method. In this method, carrot can be developed, can be grown. First, we take the eggplant, that is tip of the carrot. In the tip, there is Why you have taken the tip? Because of meristematic tissue is present at the tip. meristematic टिश्यू के अंदर ग्रोथ बहुत तेज होती है, सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है। Why? They have auxin, right? अच्छा, फिर this tip is rolled into artificial material where there is repeatedly hydrophilic cell division and large number of thallus is produced. large number of thallus is produced. And the embryo formation takes place. And if embryo first nucleogenetic system develop and radical which give rise to root and they is kept rooted in the soil with the plants. ठीक है, सही है। टेबल नंबर 8 बेटा, व्हाट इज यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल? यस, what do you mean by unisexual and bisexual? Bisexual is also known as hermaphrodite as well as monoecious. It can be depicted as HMB. Yes. Everybody is seeing from the camera. So don't do anything.
while you will capture for the camera and video also. I don't know. And this is the YouTube. Yes. आवाज नहीं आ रही मुझसे, बोलो माइक में ना। इंडिसेक्सुअल जिसमें एक ही बार और बायोसेक्सुअल जिसमें दो हुआ। क्या दो? दो क्या? What? How many of you know unisexual and bisexual? Raise the hand. She don't know unisexual concept of unisexual and bisexual. Shame on you. Next, table number 1. What is the concept of unisexual and bisexual? Unisexual means separate of male and female. But in bisexual, it means both object of male and female. Okay, bisexual. मतलब मेल कैरेक्टर एज वेल एज फीमेल कैरेक्टर दोनों ही प्रेजेंट होंगे, राइट? ओके, सो नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? टेबल नंबर 2. It can produce a variation in organism. It can continuity of the species. It maintain the continuity of the species. It can produce a new evolution of organism. What is the difference between syngamy and fertilization? Same thing. सही है ना? सिंगमी और फर्टिलाइजेशन सेम होता है, समझ लो लेवल क्या जाएगा। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन 3 फेज में डिवाइडेड होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, यस सर, है ना, है कि नहीं? और फीमेल ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन होगा एज यूजुअल, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? बना हुआ जाइगोट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीड एंड अदर फ्रूट। तो यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं कि फ्लावर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? एक फ्लावर आपके पास जो होता है, यू हैव अ फ्लावर इन योर हैंड, सो हाउ मेनी स्ट्रक्चर यू विल ऑब्जर्व इन दैट फ्लावर, पर्टिकुलर दैट फ्लावर? यस, टेबल नंबर 3. Firstly, flower is the reproductive part of a plant, and if I take a flower in my hand and I will try to describe, then I can see the organs like the anther, pollen grains, filament, and indeed we can see the pollen tube. Okay. And pollen tube. Pollen tube. Yes, sir, pollen tube. Pollen tube तो fertilization के बाद बनती है। Sir, I आपसे केवल फ्लावर्स के बारे में, पार्ट के बारे में पूछा है, डोंट गो इन डिटेल्स। आई एम आस्किंग ओनली अबाउट फ्लावर पार्ट्स एसोसिएटेड, है ना? यस। anther, filament, pistil, carpel, style, stigma, and ovary. Okay. Associated organs. So what do you think about calyx and corolla? Sepal petal. Yes, sir. What do you think about pedicel? What do you think about thalamus? ये क्या पार्ट नहीं है फ्लावर के? Yes, sir. सब है ना? ये एसेंशियली होल है। रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आएगा? एंथर, फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या आएगा? एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल। ओके, नेक्स्ट, टेबल नंबर 4। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर क्या है? जिंदगी मजे में कट रही है, ओवरी के अंदर क्या है नहीं पता। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। एक और नाम है ओव्यूल का, क्या है? यस सर, फ्यूचर सीड। ओव्यूल नाम क्या है? ओव्यूल का एक और नाम है, फ्यूचर सीड होता है। एम्ब्रियस है, अभी तो बोला। एम्ब्रियस इसके अंदर होता है। तब ओव्यूल के अंदर और क्या क्या चीजें होंगी? यस, टेबल नंबर 5। एंटीकोडल सेल, पोलोन्यूक्लियर। ऐसे नहीं बताओ, ऑर्गेनाइज मैनर में बताओ। कहाँ पे एंटीकोडल सेल है, कहाँ पे सिनर्जिड है, कहाँ पे पोलर न्यूक्लियर?
बोल देने से काम नहीं चलेगा। On the top of the ovary there is ऑन द टॉप ऑफ द ओवरी और ओव्यूल, under the ovule हाँ। there is on the top antibody cell, and between the ovule there is synergy cell, there is dinucleated, there is polar nucleated we can say, and on the bottom there is two cell of synergy cell, and between the two cell there is a egg cell which is responsible for the formation of the flower. मुझे बताओ ओव्यूल में फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहाँ पे? On the top of synergic cell क्या काम करता है वो? वो ई को रिटेस्ट कर दे रहा था। अटैच नहीं, और कोई भी काम नहीं था उसका? केमिकल Any other function है? chemotherapy release chemicals यस, for the क्या केमिकल को रिलीज करेगा और उसी केमिकल को सेंस करता हुआ इसी को हाँ। कीमोट्रोपिक मूवमेंट Yes, बोलते sir. हो। ठीक है, तो आप मुझे और बताओ कि ये जितनी भी आपने अंदर सेल्स बताई हैं, इनमें हैप्लॉइड कितनी है, डिप्लॉइड कितनी है? हाँ, haploid 6 and diploid 2. एंटीपोलर सेल जो हैं, Haploid ये तीनों कैसी हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? haploid वेरी गुड, क्योंकि अब क्वेश्चन में बहुत खतरनाक पूछने वाला हूँ। और पोलर न्यूक्ली so that's two nucleated दो न्यूक्लियाइड यानी कि डिप्लॉइड है। नीचे एग सेल है, कैसा है? haploid ठीक है, उसके दोनों बगल में कैसे हैं? they are also haploid. दे आर आल्सो हैप्लॉइड। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछता हूँ। चलिए, एक प्लांट है जिसका जो बता देता हूँ, प्लांट है डिप्लॉइड और उसके क्रोमोसोम है 46। अब बताओ कि इसमें ओव्यूल में अगर वही 46 क्रोमोसोम सिनर्जिड में कितने होंगे? 46 होंगे। कितने लोग इस बात से सहमत करते हैं यहाँ पे सब? एक डिप्लॉइड प्लांट है जिसमें 46 क्रोमोसोम है और मैंने सिनर्जिड का पूछा हुआ है कि सिनर्जिड के केस में फिर कितने होंगे? इन्होंने कहा 46, वो डिप्लॉइड और ये हैप्लॉइड है, तो आधे नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 23. चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ फिर। एक प्लांट है जिसमें क्रोमोसोम है 30, कंडीशन है हैप्लॉइड। अब आप बताओ ये पोलर न्यूक्लियर में कितना होगा जाके? 60. इज इट राइट? सर कितना 30? 40 नहीं, पहला वाला क्या कितना बताया था डिप्लॉइड में? 30, यस 30 है, हैप्लॉइड कंडीशन है। पोलर न्यूक्लियर में कितना होगा? 62 है। ठीक है, अब आप बताओ पोलर न्यूक्ली क्या है? 3N है, एंडो मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो एंडोस्पर्म ही बनेगा। आप बताओ अगर एंडोस्पर्म बन रहा है तो उसकी क्या नीड क्या है? एंडोस्पर्म बनने की नीड क्या है? एंडोस्पर्म क्यों बना? आप सब जानते हो पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट होते हैं। एक मेल गैमीट एक्स से फर्टिलाइज करता है, दूसरा वाला मेल गैमीट पोलर न्यूक्ली से फर्टिलाइज करता है और बनता है एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म क्यों बना? जरूरत क्या है? Form the gamete. क्यों? पहला वाला गैमीट तो बना चुका है ना जाइगोट, दूसरा वाला क्यों फ्यूज हो रहा है? उसका काम क्या है? To form the male gamete. नहीं पकड़ पाई बात को। यस, To provide nutrition to the टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सही है ना? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं, स्टामेन्स किन दो चीजों का कलेक्शन है? answer and filament. Anther and filament is called okay stamen. Carpel, Stigma, style, ovary. stigma, style and ovary combinedly is called carpel. Exactly. अब आप बताओ मुझे एंथर में कितने लोब होते हैं? 2 लोब। ठीक है, 2 लोब होते हैं, इसलिए उसको बाइलोब भी बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। और दोनों लोब एक टिश्यू से कनेक्ट होते हैं, उस टिश्यू का नाम कनेक्टिव टिश्यू। वेरी गुड, ठीक है। तो इसी लोब के अंदर इसका अगर सेक्शन काटते हैं तो इसी के अंदर पॉलन ग्रेन भरे होते हैं, है ना? माइक्रोस्पोर के 4 होते हैं ना। तो आप मुझे बताओ कि पॉलन ग्रेन दिखने में कैसा होगा? क्या क्या इसके स्ट्रक्चर्स होंगे? व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलन ग्रेन? हाउ दे लुक फ्रॉम द आउटसाइड? Outside there is a design
Outside design. After that, plasma membrane After that, and internal membrane in time. okay. And there is vegetative cells which give rise to polytube and generative cells which give which is the formation of two million. Okay, good. Basically, pollen grains have two layers, exine as well as entyme. Inside the entyme, there are two cells, generative cell and vegetative cell. Vegetative cells form pollen tube and generative cells form two male gametes. Exactly. What is calyx? Table number 8. Calyx. Calyx का काम क्या होता है? कैलिक्स का जरूर कोई काम होता होगा. कैलिक्स और करोला दोनों का ही काम है. किसी एक प्रोसेस में वो कराने में बड़ा हेल्प करते हैं. वो कौन सी प्रोसेस है? सेपल्स एंड पेटल्स किसी एक प्रोसेस को कराने के लिए हेल्प करते हैं. बड़े अट्रैक्टिव दिखते हैं बाहर से, कलरफुल, ब्राइट. व्हाई? मेरा क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश करो. आप क्वेश्चन नहीं पकड़ रहे हो. मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं पूछ रहा हूँ कि सेपल पेटल बड़े हरे भरे कलर के दिखते हैं, बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखते हैं. क्यों? किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी प्रोसेस को अंजाम देने के लिए. हाँ, कौन सी वो प्रोसेस है? इज देयर एनी प्रोसेस एग्जिस्ट इन नेचर? There is a process, pollination, to attract the insect. क्योंकि इंसेक्ट ही तो पॉलिनेशन करवाएगा. सोचो आप, इनको नहीं पता है. हमें लगता है कि पूरे जितने लोग हैं सबको इस बारे में पता होगा. इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वो इतना ब्राइट कलर दिया जाता है. वो चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द गाइनोशियम. गाइनोशियम इज आल्सो नोन एज फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, बहुत सारी बातें इसमें हो चुकी हैं. आप मुझे बताएं कि ओव्यूल जो होता है वो ओवरी से कैसे कनेक्ट होता है? कोई एक स्ट्रक्चर है जिससे वो कनेक्ट होता होगा. माँ के पेट में जब बच्चा पल रहा होता है तो उस टाइम पे नरिशमेंट कहाँ से मिलता है उसको? प्लासेंटा. क्या इसमें प्लासेंटा नहीं होता? ओव्यूल अटैच होता है ना उससे, ओवरी से, प्लासेंटा से अटैच होता है. चलो खैर, ओके. पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे अब. जहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं. टेबल नंबर 2 से हम क्वेश्चन पूछेंगे कि पॉलिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनेशन? आप मुझे बताओ, अगर पॉलिनेशन पूरी दुनिया से हटा दूंगा तो क्या बनेगा? क्या नहीं हो सकता? क्या हो जाएगा? अगर पूरी दुनिया से पॉलिनेशन हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो पहले तो पॉलिनेशन आप बताओ मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनेशन? क्या पॉलिनेशन होगा? It is the process in which the pollen may transfer one anthered stigma of flower to another part of stigma. बिल्कुल सही बात है. आप मुझे बताओ, ये पॉलिनेशन नहीं हो रही तो अब क्या होगा? प्लांट खत्म हो जाएंगे, फ्लावर प्लांट जितने रहेंगे खत्म हो जाएंगे सारे. हाँ, स्पीशीज खत्म हो जाएंगे. स्पीशीज खत्म हो जाएगी. एनीबॉडी है? कोई और बता सकता है इसको? यस, तुम्हारा. If pollination does not take place, then pollen grain does not then fertilization not occurs in flowering plants. Yes, exactly. And the flowers and fruits will not flowers and fruit formation will not take place. So we can not eat herbivorous will die. Exactly. अगर pollen grain स्टिग्मा के ऊपर लैंड नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड नहीं बनेगा, फ्रूट नहीं बनेगा, प्लांट नहीं बनेंगे. प्लांट पे हम डिपेंड है, हम नहीं बचेंगे. दिस इज अ कोरिलेशन ना. आप प्लांट के ऊपर डिपेंड हो, प्लांट नहीं रहेंगे तो आप कहां से रहोगे? ऑक्सीजन नहीं रहेगा, आप कहां से क्या प्रोसेस करोगे रेस्पिरेशन की? है कि नहीं? यस. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ पॉलिनेशन? कौन? अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन. टेबल नंबर 3. So self pollination is the process of transfer of pollen grains within the same plant. Means
in the self pollination, the pollen grain of the same plant which are produced from stigma goes to and then goes to the stigma for reproduction. In the self pollination, there is no need of dispersing agents like biotic and abiotic, and there is no variation. सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हमें किसी भी कैरियर की जरूरत है? No sir. नो कैरियर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस सेल्फ पॉलिनेशन। एक्सटर्नल एजेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो वेरिएशन आएगा? No sir. नहीं वेरिएशन होगा। वेरी गुड। तो एक बात बताओ, क्या हार्मफुल कैरेक्टर आगे नहीं चले जाएंगे? अगर कोई कैरेक्टर हार्मफुल होगा तो आगे नहीं चले जाएंगे सेल्फ पॉलिनेशन? चले जाएंगे। Yes sir, because of no variation. Okay, cell pollination further divided into parts: autogamy and heterogamy. What do you mean by autogamy? What do you mean by autogamy? ऑटोगैमी होने के लिए रिक्वायरमेंट किस चीज की है? फ्लावर कैसा होना चाहिए? इज इट यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल। ऑटोगैमी, ऑटो खुद हो रही है, यानी कि फ्लावर कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल। तो आप बताएं मुझे ऑटोगैमी के बारे में थोड़ा। Yes, table number 5. Autogamy done in a single flower means it has a bisexual pollen grain of same flower goes to the stigma of that single means the same flower, and there is a formation of fertilization occurred. But in eutogamy there is two flower, one is male and one is one contains male gamete and another female gamete. गिटनोगैमी में प्लांट सेम है, मगर ऊपर मेल लगा है, नीचे फीमेल लगा। तो अभी भी पॉलिनेशन सेल्फ ही हो रही, मगर देखा जाए तो ये क्रॉस पॉलिनेशन की तरीके से दिख रहा है। व्हाई? बिकॉज प्लांट ने एक रास्ता बना लिया कि वेरिएशन आई, थोड़ा बहुत वेरिएशन है, ये होता है गिटनोगैमी। अगर मैं पूछूं आपसे कि ऑटोगैमी और गिटनोगैमी में वेरिएशन दोनों में किसमें ज्यादा आएगा? नो डाउट गिटनोगैमी। ऑटोगैमी में तो आने वाला नहीं है, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्रॉस पॉलिनेशन पूछेंगे आपसे। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस पॉलिनेशन? हाँ, पहले बताइए आप क्रॉस पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन पूछेंगे। क्या रिक्वायरमेंट है? फ्लावर कैसा होना चाहिए? यूनिसेक्सुअल, डेफिनेटली। पास एक ही प्लांट पे होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग डिस्टेंस पे होना चाहिए, राइट? इज देयर एनी कैरियर रिक्वायर्ड? यस, कैरियर आर रिक्वायर्ड फॉर द पॉलिनेशन ऑफ क्रॉस। एग्जैक्टली। इज देयर वेरिएशन? अगर मैं वेरिएशन के फॉर्म में पूछूं तो आप बताओ मुझे कि ऑटोगैमी में ज्यादा वेरिएशन आएगा, गिटनोगैमी में ज्यादा वेरिएशन आएगा या क्रॉस पॉलिनेशन में? एग्जैक्टली, क्रॉस पॉलिनेशन में ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पूरी तरीके से एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट का यूज होगा, क्योंकि आप पॉलन ग्रेन को पहुंचाओगे कैसे वहां तक, राइट? आप बताओ मुझे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं पॉलिनेशन में? In pollination, biotic agents are water and air, and the abiotic components are insects. ठीक है, मान लेते हैं कि हवा से हो रहा है, तो उसको एक नाम देंगे पर्टिकुलर। क्या बोलेंगे नाम? एनिमोफिली। अगर वाटर के थ्रू हो रहा है तो उसको एक पर्टिकुलर नाम देंगे। इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो क्या नाम देंगे? क्योंकि तो बायोटिक में आ गया। इंसेक्टिवोरस, लो एंथोमोफिली, है ना? बर्ड्स के थ्रू हो रहा है तो क्या होगा? कार्निवोरस। ये सारी चीजें हैं। आपको सिग्निफिकेंस बताइए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन? क्या इंपॉर्टेंस है क्रॉस पॉलिनेशन की? The importance of cross pollination are the quality of variety can be produced. Good quality of variety can be produced. Very good. Next. It reduces the disease in the variant of state. Yes. Reduce करेगा, डिजीज आगे ना जाए। तीसरा वेरिएशन, yeah. अगला
टेबल नंबर 8, आपकी पुअर परफॉर्मेंस आ रही है, आप अपने आप को सुधारो। फर्टिलाइजेशन के बारे में बताइए, आपकी फर्टिलाइजेशन में कितनी प्रोसेस इन्वॉल्व है, आप बताएं फर्टिलाइजेशन कैसे कराएंगे। एक एंजियोस्पर्म का फ्लावर है, उस फ्लावर में आपको फर्टिलाइजेशन बताना है, कैसे बताएंगे आप? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप बताइए क्या होगा? What are the first steps involved in fertilization in plants, flowering plants? आप यकीन मानिए कुछ नहीं पढ़ के आएंगे, नहीं पढ़ के आएंगे, आप नहीं पढ़ेंगे। पहला स्टेप क्या होगा आप सबको पता होगा यहाँ पे, पॉलिनेशन, सब जानते हैं यहाँ पे। आप बताओ व्हाट इज पॉलिनेशन? Pollination it is a process in which transfer and deposition of pollen grain enter to a stem by known as pollination. वेरी गुड, वेरी गुड। अब पॉलन ग्रेन आ गया, लैंड कर गया, उसके बाद क्या होगा? एंथर के पास आएगा, एंथर के पास जाएगा, पॉलन ग्रेन आ गया और आप पोलन आ गया, फिर पोलन ट्यूब में जाने के बाद पॉलन ट्यूब में जाएगा। पॉलन ग्रेन क्या करेगा? पोलन ग्रेन जाएगा जर्मिनेटिव से रिप्रोडक्टिव जर्मिनेटिव पॉलन ट्यूब बनाएगा ना पहले? हाँ पोलन ट्यूब बनाएगा, नहीं, पॉलन ट्यूब बनाएगा। हाँ। किस तरीके का ये मूवमेंट है? पॉलन ट्यूब को कैसे पता कि उसको नीचे माइक्रोपाइलर एंड में ही जाना है? व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट यू विल ऑब्जर्व? मूवमेंट, पॉलन ट्यूब का मूवमेंट हो रहा है ना, ऊपर तो से ये क्या मूवमेंट है? टाइप मूवमेंट का टाइप बताना है। दोनों chemotrophism? यस सर, So that is why this question I am asking to you. Chemotrophism. इतना प्रेशर में मत आओ, ठीक है? आप बताओ, ये नहीं क्लियर कर पाए, आप बताओ। टेबल नंबर 3। After the deposition of pollen grain on the stigma, then it will form pollen tube, and pollen tube will go towards the synergy cell. On the whose top there is a filiform apparatus which uses the chemical, and the pollen tube knows the direction in which it has to travel to the micropylar end. Okay. And then after the pollen grain will go in the pollen tube, and then they will go and do the post fertilization. ओके, तो इन्होंने तो बहुत सारी बातें बता दी। आप मुझे बताओ कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? इसी बात 10th का क्वेश्चन था बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, इसी बात क्वेश्चन था। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही आता है ये प्रोसेस। तो क्या होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में? टेबल नंबर 4 and टेबल नंबर 8, they are not prepared for the debate competition. They are not prepared. Until unless they are not giving any answer. Yes. Yes, Prashant. In the post fertilization there is a breakdown of sepals as well as petals, and माइक बंद कर दे, फालतू जो चालू किया है बंद करे। this is and after that after the breakdown of sepals and petals they go for the further formation of fruit and vegetable seed. Very good. Ovule get converted into seed and ovule get converted into fruit. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। We are moving to the chapter, not chapter, topic human reproduction. Human reproduction. Human reproduction में आप पहले बताइए कि how puberty hits. How puberty hits. क्योंकि puberty के बाद ही पूरी कहानी आएगी। Puberty कैसे hit करेगा? Beginning of the sexual maturity is called the puberty. Okay. Yes. In the puberty, there are many ways of change of the body of the woman in the male, in the pivot, male and female. In the male, the voice of the male is the low pitch and the female is the high pitch. Pitch is high pitch. And there are the pubic hair. There are the pubic hairs that grow in the male, and in a female menstrual cycle is started. In a female, sperm is started to the release, but in a
In a male, sperm is starting to get released, Hmm. and in a female, ova is started to. Okay, very good. How many hormones are associated with the puberty? There are some hormones associated with the puberty. GH, Yes. GH and GH, growth hormone. Growth hormone is associated with the puberty. Oh my God. Growth hormone is another. उसका function ही कुछ अलग है. FSH, follicle stimulating hormone. LH, luteinizing hormone. समझ में आया? आपको सब पता है. आप प्रेशर में हो. ठीक है. What are the common characters? क्या common characters होते हैं puberty hit होने में? किसी की puberty hit हुई है, मान लीजिए 15 to 16 एज में आके, तो उसके कैरेक्टर्स क्या रहेंगे? सबसे पहला कैरेक्टर पिंपल का होता है. पिंपल्स आते हैं उसके चेहरे पे जब पहला प्यूबर्टी हिट होता है. उसके अलावा कोई बताओ. Enlargement of genitalia, ठीक है, हाँ, वेरी गुड. development of pubic hairs and Okay. facial hair, and menstruation begins in female, ठीक है, and their voices are high pitched. ओके, And in males, their skin gets mustache start to यस, राइट. decrease, and testosterone hormone Testosterone level also rises because spermatogenesis process wants to open. Yeah. Okay. चलो, ये तो बहुत बढ़िया. अब हम मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपसे पूछेंगे. आप बताइए कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कहाँ होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कहाँ होगी? पूरे रिप्रोडक्टिव मेल ऑर्गन में बताइए कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ हो? स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होगा? टेस्टिस. ओके. स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होगा. डू यू नो व्हाट इज स्क्रोटम? डू यू नो स्क्रोटम? SCROTUM. स्क्रोटम. टेबल नंबर 1. स्क्रोटम. A scrotum is inside the preventing layer. ओके ओके, मतलब टेस्टिस इनक्लोज है ना, स्क्रोटम के अंदर है टेस्टिस, मतलब प्रिवेंट करता है किसी भी डैमेज से. ठीक है भैया, सही है. अब आप मुझे बताओ कि टेस्टिस में किस चीज का अच्छा फॉर्मेशन है. आप ये बताइए कि टेम्परेचर का क्या चक्कर है टेस्टिस से? 2 degree less from the body. हमारे बॉडी से 2 degree less होता है जब स्पर्म फॉर्मेशन होता है. ठंडी में आपने हमेशा देखा होगा कि जो टेस्टिस होती है वो थोड़ी ऊपर आ जाती है ना, और गर्मियों में क्या होती है टेस्टिस नीचे आती है. फाइन. इज देयर एनी टेम्परेचर? टेम्परेचर का ही सिस्टम है ना, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, टेम्परेचर पे ही चलती है. और बाहर का गर्मियों में तो बाहर का एनवायरनमेंट है तो बाहर से, अब जाड़ों में क्या होता है बाहर का टेम्परेचर कम है तो उसको बॉडी से ही लेना होता है. कितना 2 डिग्री कुछ कम होता है बॉडी टेम्परेचर से. 2 degree Celsius. ये पढ़ा था. चलो उसके बाद आ जाते हैं. अब बताइए आपकी रूट क्या होगा? सबसे पहले जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो स्पर्म किस डक्ट से पहले ऊपर जाएगा? Sperm will go from ejaculatory duct. ऊपर कैसे जाएगा? टेस्टिस से अटैच डक्ट जो होती है जो ऊपर जाएगी उसका नाम क्या है? पहले वो testis है, after the formation of sperm, it will go out from the testis, and from there it will go. उस ट्यूब का नाम बताओ जिस ट्यूब से स्पर्म ऊपर जाएगा. So epididymis. एपिडाइडमिस, राइट. एंड सेकंड When it will go in the epididymis, then after it will get nourishment. एपिडाइडमिस के बाद वॉस डिफरेंस आता है. Yes, sir. वॉस डिफरेंस, और वॉस डिफरेंस से होता हुआ ये एम्पुला रीजन में खुलता है. एम्पुला में क्या होता है? टेबल नंबर 4. एम्पुला में क्या होगा? स्टोरेज ऑफ स्पर्म. नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा? क्योंकि स्पर्म अपोजिट ग्रेविटी से ऊपर से आया है, सारी एनर्जी उसकी लॉस हो चुकी है. अब उसको एम्पुला में स्टोर हुआ स्पर्म को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सबको पता होगा. यहाँ पे कितने लोगों को पता है? हाथ खड़ा करो ये आंसर. लड़कियों में कितने लोगों को आंसर पता है? ये तो कुछ पढ़ के नहीं है.
सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल से ही नरिशमेंट होता है। ये सब क्लास में डिस्कस किया गया, मगर आप रिवीजन नहीं करते हो। आपको पता है एक खराब स्टूडेंट में और एक अच्छे स्टूडेंट में क्या फर्क है? पढ़ते सब वही है, डिपेंड होता है रिवीजन का। आप जितनी बार एक टॉपिक को पढ़ोगे ना उतनी बार आपको पता लगेगा यार ये छूट गया था, अरे यार इस बार पढ़ा तो ये छूट गया, दूसरी बार पढ़ोगे तो अरे ये छूट गया। रिवीजन जितनी बार करोगे उतना बेहतर होगा, रिवीजन नहीं करोगे तो बेकार हो जाएगा सब मामला। चलो, अब इजैकुलेटरी डक्ट से होता हुआ स्पर्म कहाँ जाएगा? यस, Prostate gland. प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड है Yes, common gateway. हाँ, Common gateway both urine and sperm. ओके, वेरी गुड। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज और मुझे बताइए, फिर आपसे हम क्लोज करते हैं इस टॉपिक को। और स्पर्म के बारे में आप थोड़ा बताइए मुझे कि स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या चीजें स्पर्म के अंदर आप देखने को आपको मिलेगा। On the top of the sperm there is a head and condone acrosome, which encounter the ova, egg. On the behind the acrosome there is a nucleus, and after that there is a neck which contains centriole, वेरी गुड। and after it contains a mitochondria which release energy to the tail, which helps in the movement of the sperm into the fallopian tube. बहुत बढ़िया, सारी चीज तो आपने क्लियर कर दी। माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए होता है क्योंकि एटीपी चाहिए होती है, तेल के मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंट इन तेल। चलो, अब लड़कियों से क्वेश्चन पूछते हैं अवेयरनेस के लिए। ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बेटा आप मुझे बताएं कि जो यूटेरस होता है, गर्भ, जिसको गर्भ बोलते हैं, उस गर्भ में 3 लेयर होती हैं, उन तीनों लेयर का नाम बताइए। Uterus, fallopian tube, लेयर का नाम यूटेरस में पूछ रहा हूं, जहां पे एग इम्प्लांट होता है, जाइगोट इम्प्लांट होता है, वो। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। बताइए आप, टेबल नंबर 7। The wall of the uterus first includes endometrium, which is vascular. Which consists blood vessels which flow out through the vaginal passages, हाँ, which is called menstruation. बहुत बढ़िया। And there after that myometrium, which is middle, and it is smooth, which passes the coitus, that is perineum, and perimetrium, which is outer layer. It is not possible. Very good. Endometrium is associated with menstrual cycle because they have lot of blood vessels. When the sperm is not encountered with the ova, then endometrium wall has destroyed and the blood comes out through the vagina. That process is called menstrual cycle, and the frequency of menstrual cycle is after 30 days, right? अच्छा, चलो ठीक है। अब मुझे बताइए आप कि स्पर्म का इनकाउंटर कहाँ पे होता है? ओवा पे। इनकाउंटर का मतलब गोली चलाना नहीं, इनकाउंटर का मतलब फ्यूजन। यस, मैंने पूछा स्पर्म ओवा से फर्टिलाइज कहाँ पे करेगा, किस रीजन में फर्टिलाइज करेगा? आई होप कि ये सब तो आंसर जानते होंगे, सबके सब। कितने लोग आंसर जानते हैं इसका? सब जानते हैं। बताओ टेबल नंबर 1। fallopian tube, फैलोपियन ट्यूब इज द राइट आंसर। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। कहाँ फर्टिलाइजेशन कराओ? अब फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन आपने करा लिया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब जाइगोट किधर मूव करेगा? uterus की तरफ, यूट्रस की तरफ। कहाँ इम्प्लांट होगा? uterus, यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। और उसके बाद कितने मंथ्स लगते हैं बेबी बनने में? 9 months, ट्राइमेस्टर कितने? क्या सर? ट्राइमेस्टर
3 मंथ का एक ट्राइमेस्टर होता है, तो 3 मंथ हो गए, 3 ट्राइमेस्टर, राइट। चलिए ओके, ये भी हो गया, ये भी हमने क्लियर किया आपसे बहुत अच्छे से। अगले टॉपिक पे आते हैं, फर्टिलाइजेशन भी हो गया। पार्ट यूरिशन का मतलब क्या होता है? पार्ट यूरिशन, Birth of baby. birth of baby is known as Part. पार्ट यूरिशन। ओके, सो जेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? जेस्टेशन, जेस्टेशन, हाँ 9 month of मतलब जो 9 month का पीरियड रहता है। हाँ, एक माँ अपने पेट में कितने दिन तक बच्चों को रख सकती है, वो पीरियड जो होता है उसको जेस्टेशन पीरियड होता है। 9 month of period. 9 मंथ का होता है। बहुत बेसिक बातें हैं ये, तो बहुत बेसिक बातें हैं, हर एक इंडिविजुअल को पता होनी चाहिए। चलो अगली बात कर लेंगे। उसके बाद अगर बताइए, ये क्वेश्चन आया है, व्हाट हैपन इफ फर्टिलाइजेशन इज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? If fertilization doesn't occur, then the egg will wait for 24 to 72 hours, and after that it will come near the endometrium wall, and which is vascular and spongy, and then after it will go out from the vagina in the with the blood. That is called menstrual cycle. Yes, sir. Right, exactly. So we are going to the next topic, that is called population growth. How can you control the population? There are total 3 methods where you can control the population. Is there any? Tell the name of that process. 3 प्रोसेस हैं जिससे आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हो। ये बहुत बेसिक बातें हैं, हर स्कूल में सब बच्चों को सिखाई जाती है, पेडागोजी में ये सब सिखाया जाता है कि बच्चों को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, रिप्रोडक्शन के बारे में शर्माना नहीं चाहिए। यस, बैरियर मेथड, यस, केमिकल मेथड, एक सर्जिकल मेथड भी होता था पहले, वैसेक्टोमी, जिसको हिंदी में नसबंदी भी कहते थे, है ना। ये सब चीजें सीखने वाली है। चलो बैरियर मेथड बताओ क्या होता है? There are so many protections used so that the egg और sperm meet ना करे, वो है ना, ये होता है। आप पढ़ के नहीं गए चीजों को? हाँ, बहुत सारे हैं, और ये डायफ्राम भी यूज होता है, ये सारी चीजें भी यूज होती हैं। टेबल नंबर 5, केमिकल मेथड क्या होते हैं? It contains some piles which is can be taken through oral or inside the body. ओरल पिल्स एज वेल एज वेजाइनल पिल्स। ओरल पिल्स में होते नहीं, वो गोलियां लेती हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। उससे भी क्या होता है कि हार्मोन लेवल को कम किया जाता है और फर्टिलाइजेशन। सर्जिकल मेथड बताइए, वैसेक्टोमी क्या होता है? When the vast difference of the male can be removed by the cervical is called the vasectomy. Vasectomy is just nothing but a cutting of vast difference so that the sperm cannot come from the penis and it will not encounter with the egg present in female part of. समझ गया? Yes. What is tubectomy? Cutting of fallopian tube is also a surgical method where a population growth can be inhibited, pro-inhibited, है ना? Sexually transmitted disease बताइए क्या होता है? What is the sexually transmitted disease? You have not learned any topic. It's very shameful because you are sitting or standing in front of camera and that camera is live on the YouTube. So everybody is just looking to you, towards you and your performance. It's very shameful thing. Yes. What is? अच्छा सबको पता होगा, ये सब होते हैं sexually transmitted disease. Just like AIDS. Sexually transmitted disease. When
when male and female contact, then disease come. मतलब जब मेल और फीमेल से कांटेक्ट में आते हैं तब disease आता है. But there are no protection. When we don't use any protection, the sexually transmitted disease will carry, है ना, information from one place to another. इससे क्या होगा, disease हो जाएगी, और disease हो जाएगी तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम्स होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, राइट. गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है. इसका एक बैक्टीरिया होता है, इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? नाइसीरिया. एग्जैक्टली. सिफिलिस इज आल्सो कॉल्ड sexually transmitted disease. What is the bacteria name? Syphilis. Treponema pallidum. I have told you. AIDS भी कॉज होता है किस वायरस? HIV वायरस. ये तो बहुत इजी है, ये तो बता लेंगे भाई. HIV का फुल फॉर्म देखा. HIV is just saying in very, you know, बड़ा मजा आता है HIV बोलते हुए. HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. यस, सिंड्रोम भी बोल सकते हैं उसको. वायरस तो वही है वो. यस Sir, the full form of HIV is just to told human virus. Human immunovirus. Because they attack on the immune system present in human body. सबसे पहले immune system को destroy करेगा ये. इसीलिए सिंड्रोम भी कॉज करता है ना. इसलिए उसको एड्स भी बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. चलो आप बताओ सिम्टम क्या होंगे अगर किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हुई है, तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? ये क्वेश्चन पूछे गए, इसका बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछे गए. मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, अपनी तरफ से पूछता तो बहुत दिक्कत होती. फीवर ये सब लिख के ये तो यहाँ पे लिखे होंगे. फीवर, itching reproductive part, swelling. ठीक है, सही है, जो आपने बताया वो सही है. नंबर 1 तो ईचिंग इन रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरा स्वेलिंग, रेडनेस, सेंसेशन, बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन एंड फीवर. चलो भाई, आपको नहीं पता था. व्हाट इज मेनोपॉज? The stopping of menstruation cycle is known as Stopping of menstrual cycle is called menopause. That is menarche, the starting of the starting of menstrual cycle after puberty just. Okay. चैप्टर फिनिश हो गया है रिप्रोडक्शन. अब हमारे पास तकरीबन 40 मिनट है और 40 मिनट में हम जेनेटिक्स कवर करेंगे. ये भी 2 ही चैप्टर हमने सर से बोला था और डीपली इसको पूछने के लिए बोला था सर से. अब आप मुझे बताइए कि जेनेटिक्स और हेरिडिटी में क्या फर्क है? जेनेटिक्स को डिफाइन करिए आप. व्हाट इज जेनेटिक्स? Genetics is the study of the variation in heredity. यस, ठीक है. हेरिडिटी क्या होता है? When the generation transfer from one progeny to another progeny is called heredity. When the information is transferred from one generation to next generation, that is called heredity. Okay. So किस फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो रही है? DNA के फॉर्म में. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ठीक है. वेरिएशन, इसका वेरिएशन से क्या लेना देना है हुमैरा? जेनेटिक्स का वेरिएशन से क्या लेना देना है? Is there no variation with आइडेंटिकल कॉपी. डिजीज भी आके जा सकती है. राइट, सही है. वेरिएशन, 2 तरीके का वेरिएशन होता है, सोमैटिक वेरिएशन एंड जर्मिनल वेरिएशन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक वेरिएशन एंड जर्मिनल वेरिएशन? somatic variation it is effect in somatic germ, and somatic variation it is effect in somatic germ. सोमैटिक वेरिएशन अकर्स इन सोमैटिक. ये तो वही बात है कि व्हाट इज मैथ? मैथ इज मैथ. Somatic variation is presented. Somatic variation is presented. चलिए, सोमैटिक वेरिएशन. Somatic variation occur due to somatic cell. In which DNA is not responsible. It can get by outside environment, just like biotic abiotic factor. Okay. And in which do not
transfer next one generation to another generation. बहुत बढ़िया। सोमैटिक वेरिएशन में कभी भी कैरेक्टर एक दूसरे से दूसरे जनरेशन में पास नहीं होता। जर्मिनल वेरिएशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? In the germinal variation, it can affect in the germ cell, ओके in which the DNA, in which the DNA is responsible. If the variation can transfer one generation to next generation, it cannot obtain from the outer environment. It can obtain the transfer of genes. ठीक है, मतलब अगर इसमें कहीं वेरिएशन आता है तो वो आपके जनरेशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि जीन्स में प्रॉब्लम हुई है, जर्म सेल में प्रॉब्लम हुई है। Yes. क्या सिग्निफिकेंस है कोई जनरल वेरिएशन का? क्या सिग्निफिकेंस है? There are many significance of the germinal variation. Just in the germinal variation, the qualities which are owned by the parent is further transferred to the progeny form. And in the germinal variation, if suppose that the parents is having some disease, then that disease is also transferred to the progeny, and the resistance towards the disease can also be formed in the progeny. ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया। ओके, अब हम सीधे मेंडल के ऊपर आते हैं और मेंडल के ऊपर डिस्कस करेंगे। टेबल नंबर 4, मेंडल के बारे में आपको कितनी इंफॉर्मेशन है? मेंडल के बारे में आपको कितनी इंफॉर्मेशन और सब बताओ। कहाँ रहते थे, कितने सन में वो पैदा हुए, कब मरे, जगह क्या था, उसका नाम फादर ऑफ जेनेटिक्स तो बोलते ही हैं। He was born in 1822 and the day of death is 1884 and in Austria. He take a plant to study, that plant name is pea because it is very easy to study and easy to handle. सही बता पाए। प्रशांत, आप बताएं मेंडल के बारे में थोड़ा सा। Gregor John Mendel is also called the father of genetics. यस, He gave the theory of genetical transference in 1866. But this is recognized after his death in 1902. He tried to become a teacher, but he failed. After that, he came to the church and started the cultivation of pea plant. बहुत बढ़िया। After that, he take a pea plant and started study on that pea plant. There he recognized 7 features of that. ओके, That plant, that is pod sap, stem elongation, pod color, seed color, ठीक है, and flower color and flower position. ओके, वेरी गुड। मतलब इन्होंने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी है और इंफॉर्मेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। कल ही आप बताएं कि जो पी लिया गया था उसका साइंटिफिक नेम Scientific name is called bisexual. Light change करिए। This is the character. P का scientific name क्या है? पैटिसियम पाइसम सटाइवम, है ना? ठीक है, पाइसम सटाइवम। मेंडल के मरने के बाद उनकी रीडिस्कवरी हुई काम की। 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे उनकी रीडिस्कवरी में। कौन कौन से थे वो साइंटिस्ट? ह्यूगो डी वराइज, कार्ल कॉरेंस, टेशमार्क। लाइट आएगा जरा कुछ जनरल टर्म्स पूछूंगा तो आप बताइएगा मुझे कि क्रोमोसोम क्या होता है ना। क्रोमोसोम, वेयर क्रोमोसोम इज प्रेजेंट in DNA. वेयर क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन सेल। सेल में क्रोमोसोम कहाँ? Nucleus. न्यूक्लियस में होगा ऑब्वियसली, मगर सेल में जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में। जब वो बहुत कंडेंस होता है तब जाके बनता है क्रोमोसोम। बताया था? चलो
कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, जीन का कॉन्सेप्ट क्या है बताओ भैया? It is a specialized segment which present the DNA trait which code the character and trait that is called gene. ओके, कोड फॉर प्रोटीन, यूनिट ऑफ Yeah. इनहेरिटेंस। Yes sir, it explains on the protein. ठीक है। जीन किन दो चीजों से मिलके किससे मिलके बना होगा? Cell मिलकर जीन किसकी चीजों से मिलके बना होगा? protein प्रोटीन और mRNA converted into protein. प्रोटीन एमआरएनए बात है, प्रोटीन एमआरएनए से ही बनता है, प्रोटीन एंड डीएनए। Yes. होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है भैया? Homologous, there are two types of chromosome, homologous chromosome and so homologous chromosome is a chromosome in which the characters of the parents are गलत बता रहे हो आप। होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब कुछ और होता है। आप होमोलॉगस क्रोमोसोम, homo means same and logos means लॉगस मींस मॉर्फोलॉजी। अगर 46 क्रोमोसोम आपकी बॉडी में, 46 के 46 क्रोमोसोम का शेप एक जैसा है तो वो होमोलॉगस, मगर ऐसा होता नहीं, सबके शेप डिफरेंट है तो हेटेरोलॉगस होता है। ये चीज आपको छोटी छोटी चीजें हैं और जो आप नहीं ध्यान रखते हो तो कोई क्या करे भाई इसमें। अब आप बताइए मुझे कि एलील क्या होता है? The gene which contains similar trait it's called allele. सिमिलर ट्रेट और सिमिलर कैरेक्टर। Every character has two traits. Character can be defined as, so for example, height. Height can be of two types. Long. तो एलील तो दो ही होंगे और जीन एक होगा, है ना? ठीक है, ये तो सही है। आप डेफिनेशन अच्छे से पढ़ो। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? Homologous chromosome. होमोजाइगस, नॉट लोगस। Homozygous chromosome means वैसे मैंने कैपिटल टी भी दिया हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल डी दिया। बताओ इसमें दोनों में होमोलॉगस कौन? homologous is a homozygous capital T capital T. कैपिटल टी इज कॉल्ड होमोलॉगस। Same होमोजाइगस। same trait. स्मॉल टी इज Recessive homozygous is also homozygous. रिसेसिव होमोजाइगस। कैपिटल टी स्मॉल टी It is heterozygous. हेटेरोजाइगस। वन इज डोमिनेंट, वन इज रिसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट भी आप जानते हो और आपको बताने की जरूरत नहीं है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताओ क्या होता है? व्हाट इज मोनोहाइब्रिड? सिर्फ मोनोहाइब्रिड का बताना। Monohybrid cross is between the one trait. सर यार सर आपका फोन नहीं लग रहा है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये है क्रॉस बिटवीन सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस किया जा रहा है, जैसे हाइट। डाइहाइब्रिड में दो कैरेक्टर लेके क्रॉस करते हैं। आप पढ़े ही नहीं हो? बड़ा यार तकलीफ हुआ मुझे। हाँ भेजिए। डाइहाइब्रिड क्रॉस हो गया। मेंडल ने व्हाई मेंडल हैज चूजन पी? मेंडल ने पी को क्यों चूज किया? Mendel has chosen P because it is a bisexual. It is easily ready in the 6 months, and it is easier for handle. आप बताओ टेबल नंबर 7। Mental Joseph D. Corcoran. These have short duration of life and these have several contrasting types and different characters. गुड। And being is a bisexual plant. And cell pollination can also take place and cross pollination can also take place in the bee. And easy to handle and easy hybridization. सही है, ठीक है। कितने मेंडल ने ट्रेट्स लिए थे? 7। Trace 14 ट्रेट्स। कैरेक्टर कितने थे? कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस है? Character means that specific thing that skin color and the trait is that skin color is black or white. यस।
ठीक है, आप बताएं मुझे कि वो जो 7 कैरेक्टर लिए थे वो 7 कैरेक्टर के नाम क्या है? Seven characters are taken. What are the those name of that character? What about potato? About flower? This time height, flower color, pod shape, ये सारे थे. अब तो कुछ रीजन फॉर मेंडल सक्सेस. रीजन फॉर मेंडल सक्सेस. मेंडल इतने क्यों सक्सेस हुए? रीजन क्या है? He was chosen mathematically. अच्छा हाँ, मैथमेटिशियन थे तभी वो इतना बेहतर रिजल्ट आया उनमें. यस. He selected people because it was true breed. हाँ, ये भी सही है. ठीक है. Duration is very short, like 6 months. It is a self-pollination occur. ठीक है, चलिए सही. आपने तो 3-4 पॉइंट बताए, अच्छे बताए पॉइंट. आप बताएं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जरा इलैबोरेट करो. मोनोहाइब्रिड क्रॉस को इलैबोरेट करो, बताओ डिटेल में. मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? Monohybrid cross is such breed in which the single between two single characters involved. सिंगल कैरेक्टर जैसे जैसे कि long plant और and long plant and dot plant. ठीक है. लॉन्ग प्लान को कैसे डिनोट किया आपने? Capital T और डॉट प्लान को? small t. ठीक है. The homozygous dominant हाँ. capital T and small t is the homozygous recessive. ओके गुड. In after this the crossbreed, so in F1 generation, the heterozygous condition is formed. हेटेरोजाइगस कंडीशन इज फॉर्म. Yes sir. एंड प्लांट कैसा ऑब्जर्व हुआ? Plant dominant and recessive. डोमिनेंट नेचर का प्लांट ऑब्जर्व हुआ, मगर ये तो पता नहीं चला कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है. उसके लिए क्या करोगे? Law of segregation. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करोगे. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? It is in a law of dominant, the character of dominant is over the it is in law of dominant, the allele of the long plant of allele dominant is over the allele of recessive plant. ठीक है, सही है. आप बताओ कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या क्या आपके ऑब्जर्वेशन है? लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या ऑब्जर्वेशन है? सर क्या उसके मतलब क्या क्या ऑब्जर्व करते हो F1 जनरेशन मिलने के बाद? सर in the law of dominance we observe in the F1 generation the case is heterozygous and in F2 generation the case is homozygous. And F1 in the F1 generation we can see, and if we have taken the character T and then there will be capital T small t and capital T small t. Okay. But in the F2 generation where there is homozygous, then there will be capital T capital T and maybe small t small t. ठीक है. ओके, टेबल नंबर 4 कैपिटल टी स्मॉल टी है. लॉन्ग प्लांट मिला है, F1 जनरेशन में मिला है. हमें नहीं पता, हमें तो बाहर से दिखता है ना कि वो लॉन्ग है. हमें ये थोड़ी ना पता कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी. इस चीज को प्रूव करने के लिए हमने टेस्ट लगाया जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आपने क्या ऑब्जर्व किया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या क्या देखा आपने? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या देखा आपने? कितने प्लांट्स मिले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? आपने क्या सोचा था बड़ा आसान होगा यहाँ पे सब कुछ? नहीं. कितने प्लांट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मिले? 16. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में Segregation is separation gamete. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कितने प्लांट मिले? सर फिनोटाइप एंड जीनोटाइप.
दोनों ही बताओ, जीनोटाइप फिनोटाइप। सर फिनोटाइप में आ जाएगा सर दो फिनोटाइप एंड दो जीनोटाइप, टी कैपिटल टी स्मॉल। हाउ मेनी ऑफ, कितने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में प्लांट में? ये सब बता रहे हैं 16 सर दो ये 16 बता रहे हैं, जबकि वो जो मिला है वो डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में केवल 4 प्लांट थे, जिसमें एक पूरी तरीके से ड्वार्फ था, एक पूरी तरीके से प्योर लॉन्ग था और 2 हाइब्रिड डॉट मतलब लॉन्ग थे वो। और रेशियो था 1:2:1। ये था जीनोटाइप, और फिनोटाइप में 3:1 है। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस में आपने क्या किया? डायहाइब्रिड क्रॉस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। In a dihybrid cross, there are we're taking the two characters. 2 characters, yes. So this is the seed character, and another is बता दीजिए आप कि क्रॉस किसमें कराया आपने, सीधे बताइए आप। seed character, which is one नाम is लीजिए उसका जिसका क्रॉस कराया था हमने। wrinkle seeds and round seeds. राउंड सीड, राउंड येलो, रिंकल सीड। आप तो राउंड सीड बोल रहे हो। 2 कैरेक्टर होंगे ना, राउंड और कैसा येलो। राउंड हो गया शेप, येलो हो गया कलर, तो 2 कैरेक्टर हो गए कि नहीं डायहाइब्रिड के। राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। राउंड येलो इज डिनोटेड बाय कैपिटल R or capital YY, whereas the wrinkled green is denoted by small r, small yy. The gamete is produced from capital R, capital R, capital Y is capital R, capital Y. And same as in wrinkled green, small r, small y. And they will follow the law of dominance. First generation में क्या मिलेगा? Round yellow. हैं? Law, अच्छा दूसरे राउंड में कितने मिलेंगे? 4. तीसरे राउंड में कितने मिलेंगे? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में तो तीसरे राउंड में कितने मिलेंगे? 16. Very simple. This is called dihybrid cross of independent assortment. Oh my God. Okay. सर ने हमसे कहा था कि आप पूरे ही टॉपिक से पूछिए। मैंने सिर्फ 2 टॉपिक लिए क्योंकि इनके डेप्थ की चेक करना था, इनका डेप्थ चेक करना चाहिए। पूरे से पूछता, हल्का हल्का पूछता। अब इनसे ये डेप्थ है और कितने बचे हैं? मुश्किल से 5-6 महीने बचे होंगे। अभी ये तैयार नहीं है, बोलते हैं सर थोड़ा टाइम बचा है, अभी कर लेंगे, 2 महीने तो हैं, तो सब हो जाएगा। कब 1 महीना बचेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, यही करते करते। सर का सपना है कि यहाँ से डिस्ट्रिक्ट टॉपर देना है, इवन स्टेट टॉपर देना है, और आपकी ये परफॉर्मेंस। हम लोग जी जान से लगे रहते हैं, जितनी बार ये कहते हैं उतनी बार उस चीज को फिर से पढ़ाना स्टार्ट किया। मगर इवन और आप भी तो मेहनत करो। जब तक आप अपना पॉजिटिव चीज नहीं डालोगे उस चीज में, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एफर्ट्स डालो, पूरे डालो, कैसे नहीं होगी कोई चीज। चलो अगले टॉपिक थोड़ा सा और बात करते हैं 10-15 मिनट, उसके बाद सबको कंक्लूजन। I think sir, topic is over, and thank you so much for allowing here for a debate competition. अनाउंस आज 15 अगस्त को प्राइज हम लोग बांटेंगे। Yes sir. Yes sir. आप इनमें से जो भी आज के डिबेट के सबसे बेस्ट उनका नाम अनाउंस कर दीजिए ताकि प्राइज हम लोग। आप आइए थोड़ा 2-3 बातें बोलिए, इसे थोड़ा मोटिवेट करिए क्योंकि डीमोटिवेटेड बहुत करते हैं। माइक का नाम सबसे पहले तो बड़ा ध्यान से मैं डिबेट देख रहा था, और 2 दिन पहले ही मैंने बताया था कि हम लोग आपस में शिक्षक जब बात करते हैं तो क्या बात करते हैं आपके बारे में, कि कौन सा बच्चा हमारा स्टूडेंट सबसे बेस्ट करने जा रहा है, या किससे उम्मीद हमारी है कि वो 10 में सबसे अच्छा बोर्ड में नंबर लाएंगे। हमने 3-4 नाम भी बताया था, वो सामने नजर आ रहा है, बिल्कुल सामने नजर, जिसका नाम बताया उन्हीं का अच्छा परफॉर्मेंस वही बच्चे कर रहे हैं।
बाकी मैंने आपको क्लास में खुद ही बताया था साक्षी कि आपका परफॉर्मेंस बहुत ही, जितने भी सब्जेक्ट लगभग सब में टीचर आपको सिलेक्ट करता है कि आप आइए और डिबेट करिए, और आप आती भी, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है। निशांत सामने है, मैथ वाले सर लोग बड़ा तारीफ करते हैं, सर एक निशांत अंकल हो गया, बड़ा अच्छा मैथ है। बिल्कुल मैथ अच्छा है, बाकी चीज़ में क्या है, सिर्फ एक मैथ से ही सब कुछ थोड़ी होता है। बायो में लग रहा था कि जैसे आज बोलना ही भूल गए, आवाज़ ही नहीं निकलती। और सामने बाकी बच्चों का कोमल अपने उम्मीद से भी अच्छा जवाब दिया। मैं तो नहीं जानता था इतना मैथ में, सबसे बेस्ट तो क्लास में नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा बोला। हुमैरा जी आपको तो मैं पहले ही सलाह दे चुका हूँ, सर अपने यहाँ रिजल्ट बताएंगे, समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी थी लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। और हमने कहा भी था कि आप इस पर ध्यान दीजिए, मैं ऐसा क्यों। जब आप सोचिएगा मैं ऐसा क्यों, तो आपको जवाब नहीं बोलूँगी। विशेष ये हर शनिवार को चलता रहेगा और आप पढ़ें, जैसा सर ने बोला रिवीजन, विदाउट रिवीजन कुछ हो ही नहीं सकता। आपको रिवीजन करना पड़ेगा। किसी भी विद्यालय में चले जाओ, आप MIT में चले जाओ, अमेरिका पढ़ लो वहाँ प्रोफेसर से, लेकिन जब तक पढ़े हुए चीज़ का रिवीजन नहीं करोगे तुम बेस्ट नहीं करोगे। तो रिवीजन आप लोग नहीं करती हैं, सब समझ में आता है। अगर रिवीजन करेंगे तो आएगा। या फिर रिवीजन आजकल के तो बच्चे भी, स्मार्ट फोन पहले नहीं था तो स्मार्ट बॉय भी नहीं था, अब बच्चे भी स्मार्ट हो गए हैं। एक तरफ रिवीजन भी कर रहे हैं, दूसरे तरफ PUBG भी चल रहा है। क्या बात है, पढ़ाई का एकदम नया स्मार्ट तरीका होगा शायद, मैं उम्मीद करता हूँ। इसीलिए आपका रिवीजन काम नहीं कर रहा है, इनका रिवीजन काम कर रहा है, इनका काम कर रहा है, इनका काम कर रहा है, बाकी का नहीं कर रहा है, क्योंकि रिवीजन शायद स्मार्ट फोन के जैसे स्मार्ट बॉय की तरह आप लोग करते हैं। सुधार करिए, 3-4 महीना 5 महीना बीतने में टाइम नहीं लगेगा, बोर्ड आपका है, आपका रिजल्ट भी है। और जो 2-4-5 बच्चे हैं बेस्ट करेंगे तो हम लोग तो ताली बजा ही लेंगे कि चलो भाई फलाने ने बड़ा बेस्ट किया, और बाकी आपके लिए तालियां दी। ठीक है, इनको ध्यान में रखेंगे। अगले अभी मेरे पास नाम आ गया है, थोड़ा देर में मैं बता भी दूंगा कि GK का GS हम लोग का डिबेट होगा, उसके बाद उसका भी नाम बता देंगे। क्लास 9 के भी बच्चे उसमें होंगे और 10 के भी होंगे, 3 बच्चे 9 के, बाकी 10 के। और आगे सर आप विनर का नाम बता दीजिए, ताकि 15 अगस्त को हम लोग विनर प्राइज बांटेंगे। जो सबसे बेस्ट इसमें परफॉर्मेंस हो उनका नाम बता दीजिए इस कैमरे के सामने, ताकि हम लोग 15 अगस्त को प्राइज। देखिए परफॉर्मेंस तो ओवरऑल अगर इन दोनों को निकाल दिया जाए तो जज करने में थोड़ा सा मुश्किल तो है, मगर उनमें भी अगर मैं सेग्रीगेट करूं, थोड़ा अलग करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हुमैरा, प्रशांत बाल और क्या नाम है मजहर, ये 3 लोग हैं जो इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। मगर परफॉर्म को सिर्फ हम नॉलेज से भी नहीं टेस्ट करते, हम इनकी ड्रेसिंग सेंस से टेस्ट करते हैं, इनकी सियासत से टेस्ट करते हैं, इनके वे ऑफ टॉकिंग से भी मतलब टेस्ट करेंगे। तो हुमैरा ने अच्छा परफॉर्म किया है, मगर एक चीज़ में कमी दिखी, कमी ये है कि इनकी वॉइस हमें वो इन डेप्थ नहीं देखने को मिला, वो एक तेज कर्रार पर नहीं देखने को मिला, वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं देखने को मिला। वहीं मजहर भी आज थोड़ा सा मुझे लगा डाउन रहे, जो ये मानेंगे भी, कहीं इन्होंने जो वर्ड्स का टेक्निकल टर्म का यूज़ किया है वो थोड़ा सा गड़बड़ यूज़ किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत ने इवन बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, और आप लोग तालियां बजाएं। Prashant is the winner of this debate, and we will give this award to the Prashant on 15 August, right? 15 August. Okay, thank you. एक चीज़ जानिए, ये जब आप जवाब देते हैं ना, अगर आपके जवाब में कॉन्फिडेंस 100% है तो सुनने वाले को अट्रैक्ट करता है। जब जो सुनता है सामने वाला ना, वो प्रभावित है। और जब आप जवाब दे रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल कम है, तो उसको लगता है कि ये तुक्का मार रहा है और सही जाके बैठ जा रहा है। आप लोग अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, और कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आपको पूरी ज्ञान। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे, आज हम लोग इसको समाप्त करते हैं। ओके।